Hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. I am doing super duper good. And here our new chapter have been started, which is chapter number 3, The Motion of the Earth of Class 6 Geography NCERT. You all welcome back to our Chandrayaan batch, in which we are gonna cover class 6 to 12 Geography NCERT conceptually. Here, let me write. Many of you will be new one and you all should not check to my channel name. It's Saraswati here. It's Ananya Mishra here with the channel name Saraswati. Motion of the earth. There our earth shows dual motion. Our earth is dual motion. It is rotation and revolution. Rotation is the movement of earth on its axis, and earth around the movement of earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. Now we don't need to go for this one. Let's go for toolbox. And yeah, I know my voice is low because I am in cold. Here it is my earth with axis rotation, west to east direction. Here it is our sun, and here it is the path of earth which revolve around the sun. Now this one is called as orbit, O-R-B-I-T, orbit. And if you have attended my yesterday session, you could easily know that it is known as axis, and our earth is inclined in 23.5 degree. Okay, now this is our sun, earth, sun, orbit, and earth sending dual motion. One is rotation and another is revolution. Okay, and axis of earth makes angle 66 degree. Okay, the circle that divide the earth day and night of a globe is called circle of illumination. Okay, now let me draw it again to show the concept using here. Okay, here earth. Okay, let me just repeat it one more time because it has to be clear. Give me some time. Okay, here. Okay, now here it is our equator. Here ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. एंड हाँ, इसको मैं कल के एक सेशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल दी थी. वेरी मच सॉरी फॉर दैट. ओके, शायद मैं उस टाइम स्लिप टंग हो गया. क्या बोल रही हूँ, टंग स्लिप हो गया मेरा. ठीक है, यहाँ पे आ जाता है हमारा आर्टिक सर्कल. हियर इट इज़ अंटार्कटिक सर्कल. अब ये हो गया, हम लोग इंक्लिनेशन समझ लिए. अब थोड़ा कलर को चेंज करते हैं एंड लेट अस गो फॉर दिस वन, ब्लैक वन. अब डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं. ओके, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास मेरा सन है एंड इट इज़ गिविंग द सोलर रेडिएशन अप टू दिस पार्ट, दैट्स मीन इसका हाफ वाले पार्ट पे क्या हो रहा है, एक हमारा क्या जा रहा है, लाइट जा रहा है. मच्छर बहुत काट रहा है इसीलिए मैं कैप ले रही हूँ. अच्छा, तो ये लाइट जो है, पता नहीं कब से सन का लाइट ब्लैक होने लगा, लेकिन हाँ, मेरे सन का लाइट जो है वो ब्लैक है. इसको मिडल में से डिवाइड करते हैं हम लोग. यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा हमारा डे. ओके, एंड यहाँ पे होगा हमारा नाइट. हियर देयर विल बी नाइट. आई होप यू हैव गेटन द पॉइंट. एंड व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, द अर्थ इंक्लाइनेशन, दैट डजंट मैटर. ओके, इफ वी कम हियर, just come, the length of day and night is varying, right? This pole to this pole, length is varying. That's mean यहाँ पे जो लेंथ है नाइट का, यहाँ पे जो डे का लेंथ है वो इक्वल नहीं है. इसका यही मतलब है, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पे ये वाला पार्ट. इसका यही मतलब है that this is resulted in the unequal heating of our earth, unequal day and night of the earth. This is circle of illumination. Inclination have been taken here. Okay,
Okay, let's move on. Our Earth do rotation in 24 hours and revolution in 365 days along with 6 hour. And here come the concept of 6 hour. Now अब इस 6 hour को तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो 6 into 4 is 24 hour and 24 hour is equal to 1 day. That's mean we take it as 1 day on 29 February. It is called as leap year. And one more, there is factual information for you all. The person who born on 29 February is called as leapy because they were born at leap year. Here come the question of leap year. I have explained elliptical path. Okay, let me tell you what is elliptical path. This is not the orbital path they have. The path is actually this. Hey, walk. Yes. डांटना पड़ता है. Like this. Okay. पक्का ऑर्बिटल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ लाइक दिस ओनली. यहाँ पे थोड़ा सा ये, ठीक है, समझ जाओ. ऐसे लग रहा है मैं धमकी दे रही हूँ समझने के लिए. अच्छा, अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग भूल जाओ. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन, बस अगर चैप्टर ख़त्म करना होता है तो बस 6 मिनट में मैं अभी तक चैप्टर ख़त्म कर दी होती. नहीं होगा चैप्टर ख़त्म होती. ठीक है भाई, देखो अभी बात करते हैं ये वाली पिक्चर की. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिक्चर है, इससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से. मैं अभी अपने पेन का स्टाइलिश का जो विथ है एक बार कंट्रोल कर लेती हूँ. ओके, कौन सा कलर, रेड या ब्लैक? ब्लैक ही रखे. ओके, ब्लैक ही रखा जाए. ओके, दिस इज आवर सन. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से. ओके, ये वाले पोर्शन से. ये है हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो जैसा कि मैंने ड्रॉ किया था. इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ, देन आपको समझाऊंगी. यहाँ पे भी अर्थ, इंक्लाइंड, इक्वेटर, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल यहीं पे है, नॉर्थ पोल यहीं पे है. ठीक है, ओके. सब क्लियर हो गया. अब देखो ये क्या है. ये है हमारा समर इन नॉर्थन में, विंटर इज, क्योंकि देखो देखो देखो. अच्छा ओके. ये रहा हमारा, वेयर इज दैट माय रेड कलर, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लाइक दिस. ठीक है, दैट्स मीन ये वाला पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे नाइट है. चल यहाँ पे डे लेते हैं क्योंकि मेरा सन फिर यहाँ पे है. यहाँ पे डे है और यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे नाइट है. ओके, यहीं पे देख लो, इक्वल नाइट इक्वल डे है इक्वेटर पे. ये होता है समर सॉल्स्टिस 21 जून को. ओके, और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है एंड समर है नॉर्थन हेमिस्फीयर में. ऐसा क्यों है मैं बताती हूँ. इंक्लाइंड है, तुम लोग समझ चुके हो ये बात. ये रहा हमारा इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल. अब साउदर्न हेमिस्फीयर जो है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो स्लैंटिंग रेज आ रही है. स्लैंटिंग रेज नहीं आ रही है. और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो डायरेक्ट रेज फॉल हो रही है. स्लैंटिंग रेज इसीलिए आ रही है क्योंकि ये ऐसे झुका हुआ है ना, ये ऐसे झुका हुआ है तो इधर ज़्यादा आएगी, राइट, और इधर कंपैरेटिवली कम आएगी. इसीलिए दिस इज़ नॉर्थन में. यहाँ पे क्या हो रहा है, समर एंड. अच्छा, इसको मैं एक और बार बता देती हूँ, ये बहुत ईज कर देगा आपके कॉन्सेप्ट को. लेट मी डू इट. ये रहा हमारा इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ. एक और भी ड्रॉ कर ही लेते हैं. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, अब ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा कब. ये कॉन्सेप्ट होगा जब यहाँ पे ज़्यादा रेडिएशन है. दैट्स मीन यहाँ पे अब समर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विंटर. WS, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है. ओके, विच वी कैन डील विथ विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर एंड इसी टाइम पे समर होगा हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में. अच्छा, उस टाइम पे विंटर था साउदर्न हेमिस्फीयर में, इस टाइम पे समर है.
ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, एपीहीलियन एंड देयर इज ऑल्सो पेरीहीलियन। एपीहीलियन इज द डिस्टेंस बिटवीन इट। एज आई वाज सेइंग, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन, इफ़ वी काउंट, मतलब अभी आप अगर ऐसे देखोगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ज़्यादा कौन सा है, ये वाला, और कम कौन सा है, ये वाला। तो जब सन और अर्थ का पोजीशन 90 ऐसा होगा, एक वो भी स्टेट है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो इट इज़ कॉल्ड एज पेरीहीलियन एंड इट इज़ एपीहीलियन। अब याद कैसे करना है पेरीहीलियन एपीहीलियन, ये जो ऐसे वर्ड नहीं होते पेरीहीलियन, जैसे अरे सब जो साउंड सिमिलर नहीं, मैं क्या कहना चाहती हूँ, ऐसे राइमिंग टाइप ऑफ वर्ड, राइम फाइम करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकी, याद मुझे कुछ वर्ड नहीं आ रहा है प्रॉपर याद, लेकिन ऐसे तुम लोग राइमिंग वर्ड सुने हो, उसमें सबसे ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन होता है मुझे, यार पेरीहीलियन कौन सा है, एपीहीलियन कौन है। तो ये पी से होता है हम लोग के हिंदी वर्ड में अगर जाए तो पास 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 पास, वो पास वाला पास नहीं, पास करीब वाला